Okay, students. So we are going to solve 3.5 ka 13th one. P of x is given 2 plus 5x and we have to find out P of 2 plus P of minus 2 minus P of 1. That means we have to find this entire terms. ये सब निकालना है हम लोग को. So find out P of x क्या है आपके पास? P of x is 2 plus 5x. So firstly we have to find P of 2. That means you will put x equals to how much? सच्ची बोलो मेरे को. क्या डालोगे x का वैल्यू आप डालोगे 2. So P of 2 you will get 2 plus 5 into x. X means 2. So here you got 2 plus 5, 2s are 10 equals to 2 plus 10 is 12. So P of 2 you got 12. Is it so simple, students? Yes or no? चलो आगे बढ़ते. P of minus 2. अब सच्ची बताओ मुझे x क्या डालोगे आप? x का वैल्यू क्या पुटअप करोगे? आप तो पुटअप करोगे -2. So चालू कर लो. P of minus 2 is equals to 2 plus 5 into x है. x म्हणजे काय? x म्हणजे -2. -2 equals to 2 plus minus will become minus. Yes or no? Plus 5 into -2. Plus minus will become minus. 5 2s is become 10. 2 minus 10. ओहो, so difficult question. No, हमको मालूम है प्लस माइनस होता है माइनस, 10 minus 2 होता है 8 और हम डालते हैं बड़ा नंबर का साइन. राइट, ऐसे ही पढ़ने का. -8 and at last is what? P of 1. So what we will put? X equals to 1. So we will put up here P of 1 is equals to 2 plus 5 into x. X means what? It is 1 equals to 2 as it is. 5 plus 5 into 1 is 5. 2 plus 5 is how much? 7. नहीं? I know बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कुछ लोग का फेस चेंज हो रहा है. सर क्या ये बोरिंग पढ़ा रहे हो आप? हार्ड पढ़ा तो इसके बाद आओ. इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत हार्ड है. मजा आ जाएगा आपको. चलो क्या निकालना है अपने को? देखो P of 2 ये निकालना है ना अपने को. P of 2 plus P of 2 plus P of minus 2 minus P of 1. These are the things we have to find out. So what is P of 2, guys? P of 2 you got 12, right? So we will write here 12 plus P of minus 2 is what? It is -8. It is -8. So डाल दो bracket में -8 minus P of 1 is how much? It's 7. डाल दो 7 equals to 12 plus minus का होता है. अरे बबुआ बोलो प्लस माइनस का होता है? प्लस माइनस होता है हमारा -12 minus 8 minus 7. So 12 minus 8 is how much, guys? 12 minus 8 is how much? It is 4. 4 minus 7. अब मुझे बताओ 4 minus 7 होता क्या है? 4 है प्लस, 7 है माइनस. प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. 7 minus 4 होता है आपका 3 और बड़ा नंबर का साइन माइनस. सो योर फाइनल आंसर इज -3. Is it so simple, students? Kindly take the screenshot, please. Okay, share sound on है. चलो. Factorization in just 5 seconds. Are you ready for it, friends? So we will see the first sum now. Okay. What is the first coefficient of x square? That is 3. So what are the factors of 3? Is it very simple? 1 and 3. So I will write smaller number here and greater number here. Yes. So 1 3s will become 3. And what about 15, guys? What are the factors of 15? Yes, you are right. 3 5s are 15. So I will write smaller number here and greater number here. 3 5s are 15. But here we have 3x square, right? So 1 and 3 we can write here 1x and 3x because we are taking the coefficient of x square, right? So we are taking the variable x and here also x. Now the magic begins. So just multiply here, cross it 1x into 5. What will become? It will become 5x. Yes or no, students? Now we'll cross here 3x into 3. This will become what? 9x. Yes. So 9x and 5x. What we will do so that we can get this 4x? Obviously we will do subtract. So I will do here subtract. So 9x minus 5x because greater number is positive, right? So here we are positive. So I have to make this plus and this minus. So shift sign towards this side. This will become plus. This will become minus. Bingo. So you have reached your solution. First solution is x plus 3 and next solution is
3x minus 5. These are the factors of first sum. Start. Okay, students. So is it so simple, right? Now we will move towards the next part. What is the next question? Here it is. We have 80x square. So what are the factors of 80? What we can take? Yes, exactly. 3 6 are 80. So I will write here 3x and I will write here 6s. Why? I have told you now. We have to write smaller number here and greater number here. Now we are moving towards what? 35. So what are the factors of 35, students? Absolutely, 5 7s are 35. So I will write smaller number here and larger number here. Yes or no? So what we have to do? We have to do the magic trick. What is the magic trick? We have to just cross it. So cross it. 3x into 7. You will get what? 21x. Yes or no, students? And here also 6x into 5. You will get 30x. Okay? But what we want is, here we want 9x. But in positive. So I will give plus sign to bigger number and minus sign to smaller number. So shift this sign. Plus will become here plus and minus will become here minus. Bingo! So what are the factors now? We have here 3x plus 5 and here we have 6x minus 7. These are the factors. Is it so simple, guys? Okay, students. So I hope this. I'm starting now. देखो पहले वाले और आखिरी वाले को ऐसे ही रखने का. फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म यू विल केप्ट एज इट इज. यू हैव टू चेंज दिस मिडिल टर्म. ये जो 61x है ना, इसको आपको दो नंबर बनाना है. 61x को कोई ऐसा दो नंबर बनाना है जिसको स्प्लिट करें हम लोग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 61 को आपको दो नंबर बनाना है. नाउ सी हियर, आई विल यूज माय ट्रिक. ये ट्रिक को एग्जाम में यूज नहीं करना है बेटे लोग, अच्छा समझो. एग्जाम में हम यूज करेंगे, मार्क्स नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम में. इसको आपको समझने के लिए सिखाया गया है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज क्या होता है, ये 61x का बहुत सारे नंबर है. हमको कैसे मालूम पड़ेगा राइट नंबर कौन सा है? और राइट नंबर समझने के लिए हम ट्रिक यूज करने वाले हैं. समझ में आ रहा है? राइट नंबर यूज करने के लिए हम क्या यूज करने वाले? सौम्या, डोंट राइट एनीथिंग, फोकस ऑन द स्क्रीन. आई नो यू नो एवरीथिंग. आपको पूरा 9th पता है ना शायद. फोकस ऑन द स्क्रीन. चलो आ जाओ अभी यहाँ पे. सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म उसको ऐसे ही रखना है, धक्का नहीं देना है. मिडिल टर्म वी हैव टू चेंज इट. नाउ हाउ वी कैन चेंज इट? सी हियर, 12 and 77 we have, right? 12 and 77 we have. So 12 को we can write what? 3 4s are 12. Yes or no? 3 4s are 12. So I can write पहला छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे. तो I will write, यहां पर लिख रहा हूं मैं 3x and what? 3x and what? 4x. Because 3 4 जो होता है 12. Got it? Now what about 77? 77 what I can write? Yes, 11 into 7. So we will write first 7 then 11. Any doubt till here? ये सबको समझ में आ गया? Now simply begin the magic. ये मैजिक है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3x into 11 हो गया आपका 33x and 4x into 7 हो गया आपका 28x. till here any doubt? अब ध्यान से देखो, 28 और 33 को मैं क्या करूंगा तो मेरे को 61 मिलेगा. 28 को और 33 को मैं क्या करूंगा, मुझे 68 मिलेगा. वी विल 61 मिलेगा. वी विल ऐड. तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करता हूं. देखो इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया. अब जब मैं ऐड करूंगा तो बीच का टर्म मिलेगा ना 61x. यस और नो? अब ये ऐड का साइन इधर आ जाएगा और ये भी ऐड का साइन इधर आ जाएगा. गॉट इट? ये भी ऐड का साइन इधर आ जाएगा, ये भी ऐड का साइन इधर आ जाएगा. मेरे को दो नंबर मिल गया गाइस. ध्यान से सुनो, मेरे को दो नंबर मिल गया. 28 मिल गया और 33 मिल गया. याद है क्या क्या मिला मेरे को? 28 और 33. अब मैं याद रख के यहाँ पर लिखूंगा. देखो ध्यान दो अच्छे से. 12x स्क्वायर ऐसे कैसे लिखेंगे हम लोग? बट इन प्लेस ऑफ 61x व्हाट आई टोल्ड? 28 एंड 33. तो राइट डाउन 28x प्लस 33x. और लास्ट वाले भी अपन ऐसे कैसे रखेंगे? अब यहां तक समझ में आया क्या? बताओ मुझे. हमने सिर्फ बीच वाले टर्म को टुकड़ा किया. हमने सिर्फ बीच वाले टर्म को टुकड़ा किया. कैसे करना है मैंने वो ट्रिक मैजिक बता दिया आपको. Any doubts still here guys? Shall we move ahead? चलो अब 4 बन गए तो दो दो के हम लोग क्या करा देंगे? जोड़ी बना देंगे. We will make a pair. बना दो पैर. पैर मतलब लेग नहीं है गाइस, जोड़ी. पैर मतलब जोड़ी. पहले दो का जोड़ी और तो ये दो का जोड़ी. चलो बना लो. Now tell me 12 and 28 what is the common term? 12 में और 28 में कॉमन क्या है? 12 में और 28 में कॉमन क्या है? चलो फटाफट बोलो. 12 और 28 में कॉमन क्या है? यस,
12 और 28 में कॉमन है पहला 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो 4 कॉमन है, और यहां भी x स्क्वायर है, यहां भी x है, मींस वी हैव योर x कॉमन ऑन बोथ साइड्स, राइट? सो वी कैन से 4x इज द कॉमन। दोनों में कॉमन कौन है भैया? यहां पर तो है 4x। सो बचा क्या? देखो 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 4 3 जा 12 होता है, राइट? तो 4 आउटसाइड, सो वी विल गॉट 3, एंड फ्रॉम x स्क्वायर वी हैव टेकन आउटसाइड x, तो बचा सिर्फ मेरा x। बहुत बढ़िया जा रहे हैं हम लोग। 28 वी हैव टेकन 4 आउटसाइड, सो 4 7 जा 28, सो 7 विल रिमेन, x तो गया बाहर, छोड़ दो उसको, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये समझ में आई? ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका 9वीं भी क्लियर, 10वीं भी क्लियर, 11वीं भी क्लियर, 12वीं भी क्लियर। ये ट्रिक वो ट्रिक है, इसके लिए बहुत ध्यान से देखो इसको, बहुत ध्यान से। 4 वी हैव टेकन कॉमन, सन्नी, श्रीजी हमने 4 को कॉमन लिया। देखो 4 12 में भी आता था, 4 8 28 में भी आता था, राइट? 12 एंड 28 बोथ आर कमिंग इन द 4 का टेबल ना, सो आई हैव टेकन 4 आउटसाइड, ओके? एंड x स्क्वायर एंड x वी हैव, तो x वी हैव टेकन कॉमन, जो भी कॉमन है वही लिख देने का भाई, सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी कॉमन है वही लिखना है आपको। आगे बढ़ते, अब प्लस साइन आ गया। अब ये दोनों में कॉमन कौन है? एक जगह है 33, एक जगह है 77। नो अश्विन, यू कांट टेक 2, फिर वापस 2 बाहर लेना पड़ेगा, जो बड़ा कॉमन है वो लेने का। बिगर नंबर यू हैव टू टेक कॉमन। चलो 33 एंड 77, व्हाट इज द कॉमन गाइस? ऑब्वियसली यू ऑल नो 11 इज द कॉमन, 11 is the common. Now tell me, from 33 if we take 11 outside, what will remain? Remaining is 3x. 33x में से 11 बाहर गया तो बचा क्या? 3x, right? Plus 77 में से 11 बाहर गया तो 11 कितना था? 77 is 7 था, so we have writing 7. Any doubt till here? Any doubt till here? Any शंका till here? और एक बात बोल, एक राज की बात बताओ आपको, ये जो ब्रैकेट आएगा ना, पहला जो ब्रैकेट आएगा ना, वही डायरेक्ट दूसरा ब्रैकेट लिख देने का। लॉजिक समझ रहे हो? सेम दिख रहा है ना यहाँ पर, दिस इज द ब्रैकेट एंड दिस इज द ब्रैकेट, द ब्रैकेट विल रिमेन ऑलवेज सेम। तो हमको पहला ब्रैकेट निकालना है, दूसरा ब्रैकेट आपको ऑटोमेटिकली छाप देना है। यू हैव टू कॉपी पेस्ट इट। सो जो ब्रैकेट रिपीट हुआ है उसको एक बार लिखो। क्या रिपीट हुआ? 3x प्लस 7, फिर क्या बचता है? बचता है 4x प्लस 11, उसको अलग ब्रैकेट में लिखो। बिंगो, वी हैव डन द कांसेप्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एनी डाउट देन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस। आई हैव टेकिंग हाफ आउटसाइड, मैं हाफ आउटसाइड ले रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से। देखो इसके पास में हाफ था, इसके पास में हाफ था, क्या इसके पास हाफ था? -3x के पास नहीं था, तो मैंने क्या करा, -3x के पास नीचे 2 ले लिया। हाफ चाहिए था ना मेरे को, अगर मैं नीचे 2 लूंगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को एडजस्ट करने के लिए, मान रहे हो? तो ये क्या बन जाएगा? -6x/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -6x। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास हाफ x स्क्वायर था पहले, तो ये क्या बन गया? -6x/2 बन गया। प्लस क्या 4 के पास में हाफ है? क्या 4 के पास में हाफ है? नहीं, आप लोगे नीचे हाफ लोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन गया? 8/2 बन गया, राइट? सो इधर हम लिखेंगे 8/2। मैं क्या कर रहा हूं? देखो मेरे को ये हाफ प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 को भी हाफ ले रहा हूं मैं, 4 को भी हाफ ले रहा हूँ। अब ये बन गया, देखो अब सब में से हाफ ले सकता हूँ, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, हाफ कॉमन लिया मैंने। देखो तो क्या बचा? यहाँ पर x स्क्वायर बचा, माइनस इधर 6x बचा, प्लस इधर 8 बचा। ये सब क्लियर है क्या? बताओ मेरे को ये वाला। व्हाट आई हैव डिसाइडेड, सब में से मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और बाद में इसको हाफ को बाहर ले लिया। इसके आगे सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी हमको करना क्या? देखो हाफ तो बाहर ही रहेगा, मेरे को मेन निकालना है ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अच्छे से देखो अभी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी व्हाट इज x स्क्वायर? x स्क्वायर मतलब ये हो गया 1, x स्क्वायर हो गया मतलब 1। तो अभी 1x स्क्वायर को हाउ कैन ब्रेक? 1x इंटू 1x, यस और नो स्टूडेंट? सिंपल ना, 1x इंटू 1x करोगे तो ही तो 1x स्क्वायर मिलेगा आपको।
सिमिलरली 8 को आप ब्रेक कैसे करोगे बताओ मेरे को, 8 को आप ब्रेक कैसे करोगे, 8 को आप ब्रेक करोगे 2 4 जा, राइट, तो वी विल राइट हियर 2 4 जा, गॉट इट टिल हियर, हम करेंगे 2 4 जा। अभी ध्यान दो अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे हमको निकालना है 6x, 2 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1x into 4 it is 4x, 1x into 2 it is 2x, okay, so we got, हमको 6x चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, ध्यान दो, हमको चाहिए था 6x, तो मेरे को 2x और 4x मिला, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा मेरे को 6x मिलेगा, यस और नो, लेकिन मुझे चाहिए क्या है गाइस, मुझे चाहिए -6x, अच्छा समझो इधर, मैं अगर ऐड करूंगा तो मेरे को 6x मिलेगा, देखो अगर मैं इधर ऐड करूंगा मेरे को क्या मिलेगा, +6x मिलेगा, यस और नो, तो क्या मिलेगा, +6x मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, सीधे मैजिक ट्रिक मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां तक क्लियर था, अच्छे से समझो अभी, x² - 6x + 8, इन एग्जाम्स इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दिस मिडिल टर्म, अच्छा समझो, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द मिडिल टर्म, ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन, सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टू मिडिल टर्म, तो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, मैजिक ट्रिक, देखो 1x², हाउ आई कैन राइट, वी कैन राइट 1x into 1x, अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, ये आप लोग किसमें करोगे, रफ वर्क में करोगे, ये आपको एग्जाम पेपर में नहीं लिखना है, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दी सम्स, आपको इजी होने के लिए ट्रिक बताया गया है, तो आप इसको कैसे लगेंगे, पेज के बैक में, यानी कि रफ पेज में लिख सकते हैं। आगे 8 को हाउ आई कैन राइट, यस वी हैव डिसाइडेड नाउ ओनली 2 into 4, because 2 4s are is 8, now the magic trick begins, magic trick को लगा दो, 1x into 4 you will get 4x and 1x into 2 you will get 2x, any doubt till here, so we have got the two numbers 4x and 2x, but जब हम इसको ऐड करते हैं, ध्यान से सुनो, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये मिलता है हमको 6x, क्या मिलता है हमको 6x, but we want here -6x, are you getting my point students, very important point, हमको चाहिए -6x, so what you will do, you will change the sign, हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, ये जो प्लस था इसको माइनस डाल दो, ये भी प्लस था इसको माइनस डाल दो, नाउ टेल मी -2x - 4x, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, यस और नो स्टूडेंट्स, सो 2x + 4x बन गया 6x, और हम लोग यूज करते हैं ग्रेटर नंबर का साइन, वो आ जाएगा आपका माइनस। ये अच्छा डिस्कशन हम लोग ने किया गाइस आज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, बिकॉज दिस फैक्टराइजेशन इज कमिंग फॉर 10th 11th 12th सब में है आपको, तो ये झगड़े को यहाँ पर ही खत्म कर दो फैक्टराइजेशन का, अगर यहाँ पर नहीं सीखोगे गाइस तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, समझ में आया, ट्रिक समझ में आया, तो अभी हम दो नंबर क्या यूज करने वाले हैं, -2x and -4x, व्हाट वी आर यूजिंग, -2x and -4x, कम अप, चलो आ जाओ यहाँ पर, अभी क्या आएगा देखो, यहाँ पर हाफ कॉमन है, हाफ इज कॉमन, so x² in place of -6x what we are doing, -2x - 4x, लिख लो -4x - 2x, और you can write, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, पहला छोटा नंबर लिख लो, हाफ x² -2x - 4x, you can write anything, you can write anything, चलो आगे बढ़ते हैं, +8 as it is, firstly I have told you guys कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे we will break only the middle term guys, अच्छा समझो, सिर्फ मिडिल को छूना है, फर्स्ट और लास्ट को धक्का भी नहीं देना है हमको, आगे बढ़ते, अब हमने क्या डिसाइड किया, हाफ, ओके, सो वी आर पैरिंग, राइट, वी आर डूइंग द पैरिंग पार्ट, हम पैरिंग करेंगे, क्या बचेगा बताओ मुझे, x² - 2x गाइस, जस्ट टेल मी व्हाट इज द कॉमन नंबर, x² - 2x में कॉमन कौन है, x कॉमन है, अंदर क्या बचा, x - 2, वेरी गुड गाइस, अब ध्यान दो अच्छे से, यहां पर साइन है माइनस, मैं भी यहां पर लूंगा माइनस, नाउ टेल मी 4x and 8 व्हाट इज द कॉमन टर्म, 4x and 8 व्हाट इज द कॉमन टर्म, एग्जैक्टली 4 इज द कॉमन टर्म, बिकॉज 4 के टेबल में भी 4 आता है, एंड 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, सो वी विल टेक कॉमन एज 4, यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या मिलेगा इधर बताओ, अभी अंदर क्या मिलेगा, x - 2, मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट को छाप देना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट को छाप देना है, यहाँ पे गाइस, मैथ्स में जितना आप शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करोगे कंसेप्ट के लिए, आपको उतना फायदा रहेगा, और कई सालों तक ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा। मैथ्स इज नथिंग दैट कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है, मैथ्स इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड लर्निंग द कंसेप्ट,
आपको कंसेप्ट को समझना है, और समझने के लिए ट्रिक यूज करना पड़ेगा आपको, अगर आपको लंबे समय तक सीखना है तो। अगर आपको सिर्फ यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ना है, आप रट्टा भी मार लोगे, क्या दिक्कत है। अगर आपको लंबे समय तक ट्रिक समझना है तो आपको ट्रिक को अच्छे से समझना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्या करा, -4 को कॉमन लिया और यही ब्रैकेट को यहाँ पर छाप दिया। चलो आ जाओ इधर। अब मैंने क्या बोला था, जो है सेम उसको लिखेंगे एक बार। x माइनस टू x -2 सेम है, लिख दो एक बार। बहुत बढ़िया। आगे क्या है भाई, आगे है हमारे पास में x -4, बचा हुआ लिखना बोला मैंने, तो x -4 इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको कंसेप्चुअल भी समझ में आ गया है। यस और नो, लेट मी नो द चैट बॉक्स। इफ डन, kindly take the screenshot. Okay, let's begin now. So first sum. How to approach this kind of sum, guys? See, here we have x square minus x, here we have x square minus x. ऐसे लेंदी सम्स लग रहे हैं। हमने तो सिर्फ m square x square ऐसे ही पढ़े, राइट? We don't have x square minus x. So what I will do, हम वो x square minus x को शॉर्टकट बना देंगे, सिंपल बना देंगे। देखो how we can say. I can start with let x square minus x, I can say z. मैं z ले लेता हूं उसको। Yes or no? x square minus x the entire term, I can say z. Yes or no? कुछ भी ले सकते हैं आप, w ले लो, y ले लो, बट x मत लो क्योंकि x पहले से दिया हुआ है। क्या लेंगे हम लोग, z ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी लो। देखो मैं सॉल्यूशन बताता आपको। देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर m लिया है मैंने सॉल्यूशन में। यू कैन टेक a b c एनीथिंग एक्सेप्ट x, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में x दिया है आपको। चलो हम m ले लेते हैं अभी। अगर मैंने x स्क्वायर माइनस x को m ले लिया तो क्या होगा, आगे का स्टेप देखो क्या होगा। जहां जहां x स्क्वायर माइनस x है वहां वहां m बन जाएगा। देखो यहाँ पर सी, दिस विल बिकम m स्क्वायर, दिस विल बिकम m, दिस विल बिकम 12 एज इट इज। समझ में ये वाला पार्ट? जहां जहां x स्क्वायर माइनस x है वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एज m। ओके फॉर यू गाइस? इसके आगे बढ़ू तो बताओ मुझे, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? ओके, सो नाउ वी हैव दिस फॉर्मेट। हमको इसको फैक्टराइज करना है, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 12, राइट? सो हाउ वी कैन अचीव दिस पार्ट? देखो यहाँ पर हम करते हैं हमारा मैजिक ट्रिक, चलो बता दो हम मैजिक ट्रिक में क्या करते हैं। हम करते हैं m को सॉल्व और 12 को सॉल्व। यस और नो? सो m स्क्वायर को हाउ वी कैन राइट गाइस? वी कैन राइट 1m इंटू 1m। एप्रिशिएबल गाइस। नहीं, चैट बॉक्स में सवाल करने से पहले ही आंसर्स आ जा रहे हैं, मतलब आपको मैजिक ट्रिक पूरी तरीके से समझ में आ गया है, राइट? रात को 2 बजे भी अगर आपको उठाया जाएगा सो आपको उतना आना चाहिए आपको डायरेक्टली, हाँ सर ऐसा करना है ऐसा करना है कर आंख बंद करके ही सही, लेकिन बोलना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। 12, सो व्हाट डू यू मीन बाय 12? 12 को वी कैन राइट 2 6 are 12 गाइस। यस और नो? नॉट 2 4 are 2 6 are 12, 2 6 are 12। यस और नो? ओके, अब मैजिक ट्रिक को शुरू कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1m into 6 is equals to 6m, 1m into 2 is equals to 2m. Okay, bingo. Now what you will do guys, just let me know. 2m and 6m आप इसको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, बताओ मुझे। हमको 8m चाहिए तो ऑब्वियसली यू विल ऐड अप, राइट? हम ऐड करेंगे ना, 2m और 6m को ऐड करेंगे। हम तो ऐड करने वाले हैं 8m बनाने के लिए। ध्यान दो अच्छे से, लॉजिक समझा रहा हूं देखो। बट मैंने यहां पर ये देखा कि 8m के बाजू में क्या साइन है, 8m के बाजू में है माइनस। माइनस करना है तो हमको दोनों को भी क्या लेना पड़ेगा, यस माइनस लेना पड़ेगा। नाउ चेक, -2m माइनस 6m, हमने बचपन से क्या पढ़े, माइनस माइनस प्लस, 2m प्लस 6m होता है 8m और बड़ा नंबर का साइन। तो -2m माइनस 6m अगर आप करोगे तो यू विल गेट -8m, यू विल गेट -8m। गाइस फ्लो में चलो मेरे साथ में, एक फ्लो में चलो तो मैथमेटिक्स समझ में मजा आएगा। आगे बढ़ते चलो। तो मेरा नंबर क्या है, -2m एंड -6m और -6m -2m। चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग। हियर वी हैव m स्क्वायर -6m एंड -2m प्लस 12 will remain as it is। हमने पहले ही कसम खा ली है, we have done a promise to mathematics that we will not hurt or we will not touch first and last term। ये हमने पहले डिसाइड कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। पेयरिंग ऑफ दिस टू टर्म्स, पेयरिंग कर लो। m स्क्वायर -6m है आपका। बच्चों लोग बता दो अभी क्या कॉमन लोगे आप,
यस, m विल टेकन कॉमन, सो अंदर बचा m माइनस 6m, इफ वी आर टेकिंग m कॉमन, m जाएगा बाहर, अंदर बचेगा आपका 6, yes or no? Okay, minus, so what is the common in between? Yes, 2 is the common. और अंदर क्या करोगे, ट्रिक बताओ मेरे को। हाँ, याद रखना है, छापो। क्या याद रखना है? छापो। सो डायरेक्टली m minus 6 you will write here. नहीं गाइस, अगर ऐसे कंसेप्चुअल पढ़ाई करोगे गाइस, आपको आई एम डैम श्योर, नहीं आपको हमेशा लास्ट लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा कंसेप्ट। ओके, सो जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा उसको एक बार लिखेंगे। अब क्या करोगे आप? यस, अब क्या करोगे आप? इसको रिसब्स्टिट्यूट करोगे आप। देखो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन डायरेक्टली यहाँ पर बताता हूँ कहाँ तक हम लोग आए। There's 5 minutes remaining guys, I know हम इस सम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन चलो। और गाइस डाउट्स में आपका डायरेक्टली चैट्स में क्लियर कर दे रहा हूँ, जिसके डाउट्स आ रहे हैं ना मैं वही सम स्टेप सिखा रहा हूँ आपको वापस से। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग को, क्या दो नंबर मिला, m-6 और m-2 मिला, राइट? m-6 एंड m-2 यू गॉट। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रिसब्स्टिट्यूट। हमने m को क्या पुट किए थे, x स्क्वायर माइनस x था ना भाई हमारे पास, देखो यहाँ पर ये पुटअप किया था ना हमने, यस और नो? x स्क्वायर माइनस x को हमने m लिए थे, आप बदली कर दो, m-6 है तो मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m-2, m क्या था, m तो था हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। क्लियर? एनी डाउट्स? यहाँ तक आ गए हम लोग? चलो यहाँ तक आ गए हम लोग सब जन, सब एग्रीड हो? यहाँ तक मजा आ रहा है? क्या बोर हो रहे हो? कोई अच्छा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? चलो आगे बढ़ते फटाफट, 4 मिनट ही बचा, जल्दी। देखो अभी जो मेरे पास दो ब्रैकेट है, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। नाउ टेल मी, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को कैसे सॉल्व करोगे आप? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को कैसे सॉल्व करोगे? देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, बोलो क्या आएगा फटाफट? ये आपका आएगा 1x इंटू 1x। अभी आपको आता है, अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं। 6 को आप क्या लिखोगे, 6 को 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यह बचा 3x, यह बचा आपका 2x, ये बचा 2x और 3x। तो मतलब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x और 3x से लिख सकता हूँ मैं, बट मुझे चाहिए माइनस साइन, मुझे चाहिए माइनस साइन। तो 3x को मैं लिखूंगा माइनस और इसको लिखूंगा प्लस, बिकॉज हमको मालूम है बड़ा नंबर का साइन आता है, राइट? ये माइनस एक्स से मतलब क्या आएगा, बड़ा नंबर का साइन आएगा। तो 3x को मैंने माइनस दिया, 2x को मैंने क्या दिया, प्लस दिया। तो मैं एक बात बताओ, इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अभी मैंने वही डिसाइड किया गाइस, ध्यान दो, माइनस एक्स को क्या लिखा मैंने, ये लिखा। अब पेयरिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 2x माइनस 6 का क्या आएगा, x कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 3 प्लस यहां पर क्या कॉमन है, 2x माइनस 6 में, जल्दी बोलो। यस, 2x माइनस 6 में कॉमन है 2, और उसके बाद क्या ब्रैकेट में आएगा, छाप दो x माइनस 3। यस, सो x माइनस 3 सेम एक ही बार लिखो और x प्लस 2 अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारा ब्रैकेट एक का आ गया, समझे? इसको कैसे सॉल्व किया समझ में आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को सॉल्व किया समझ में आ गया? जो आप तक कर रहे वही कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इधर। अब आप मेरे को बताओ इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा। मैं डायरेक्ट बोलूं आपको, आप करके देखो घर में होमवर्क, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका फैक्टराइजेशन आएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, बिकॉज 2 को आप लोग क्या लोगे, 1 2 जा 2, यस और नो गाइस? तो एक जगह पे 1 आया, एक जगह पे 2 आया, गॉट इट? तो अभी हमको क्या मिला, देखो हमको इसका फैक्टराइज क्या मिला, x माइनस 3 और x प्लस 2 मिला था। यस, इसका फैक्टराइज क्या मिला हमको, x माइनस 3 और x प्लस 2 मिला था। और इसका फैक्टराइज क्या मिला हमको, अभी मैंने लिखा था x माइनस 2 x प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। आई नो दिस इज लिटिल बिट लेंथी सम, बट आपको ट्रिक समझ में आ गया है। कितना भी बड़ा सामान दो, जब आपको ट्रिक आता है आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एम आई राइट गाइस? सब जन चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। नहीं समझ में आया तो हम वापस समझेंगे, डोंट वरी गाइस। एक ही सम किया अभी तक अपन ने, नहीं कैंसिल नहीं होगा बच्चा लोग, ये x प्लस 2 x माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा, झूठा अफवाह मत फैलाओ, कैंसिल नहीं होगा। चलो मैं स्क्रीनशॉट देता हूं आपको, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, चलो स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट। कैसे कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई है वो सौम्या, डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई हो, नहीं कैंसिल होता।
चलो आगे बढ़े. It's done, guys. Okay. Yes. Yes, Aditya. Hello. Yes. Yeah, Aditya. Yes, I have a doubt that how you do that 3 x minus 3 and x plus 2. I don't understand that. Sorry. Hello. Tell. Yes, I have not understood that x minus 3 and x plus 2 how they came. Can you explain it again? X minus 10 x plus 2 means Yes. first part. This इसका. एक मिनट. Yes. Just a moment. Just a moment. Our last step. Okay. Just a moment. This part you're talking about, right? Yes. This part. Yes. Okay. So x square minus x minus 6 tha, right? So Yes. x square we can write 1x into 1x and 6 you can write 2 into 3. It's okay for you? Yes, sir. Cross multiply. This is 3x and this is cross multiply. This is 2x. Okay. But we want what? हमको चाहिए minus x. तो 3x minus 2x करेंगे तो ही तो हमको 1x मिलेगा. Yes. Okay. So I'm doing minus here. But we want minus x. तो माइनस हम कब लेते हैं जब बड़ा नंबर को माइनस रहेगा तब हम माइनस लेते हैं. Yes. Yes or no? When we are subtracting the two numbers, when the minus is coming, whenever the bigger number having minus sign. So Yes. इसको मैं minus देता हूँ, इसको plus देता हूँ. Now check it. Minus plus minus. Minus. So 3x minus 2x is how much? It is 1. x. And bigger number minus x. Bigger number का sign minus. Okay? Yes, sir. Thank you. Yes, Ayan. Fast. Jaldi. Sir, I have doubt about means earlier question number 1, fourth one. Sir, I have raised and but you have not seen that on that time. Because Question one flow- number 1. Yeah, I know. I saw he was raising the hand, but the flow was going on, no? That's Sir? why. Just a moment. Just a moment. Huh. Now tell. Sir, can you hear me? Your voice is not proper. Echoes are coming. Your voice is not proper. Echoes are coming. Sir, I need question number 1, fourth one. Just a moment. Question number 1, fourth one. I have not done the fourth one till now. Yes, sir. मैंने fourth one किया ही नहीं बच्चा. मैंने fourth one किया ही नहीं. 6. Sorry, sir. 6. हाँ, 6 में क्या डाउट है आपको? जल्दी बोलो. पूरे सब में डाउट है? I can't hear you. Okay, tomorrow, Ayan. Tomorrow I will clear your doubts because it's already Sir, 11:47. 6 to Huh. 1 I need. Actually,